ठीक है, well students, today I am going to demonstrate how the ceiling fan work, right? You all have a lot of queries regarding the use of capacitor here and how this ceiling fan work, what are the different components of it, right? So I will take this ceiling fan, I will open it, I will show you all the components and what is the role of all the components inside this ceiling fan, right? So आप देख सकते हैं कि ये तो इसके कप हैं. First of all, तो we have to take these cups open. So yes, Mohit, you come here and please open it. Do it. स्क्रू जो ऊपर वाला इसको ओपन करो पहले. We can remove this cup even without you taking it out, but then cup will remain there. So that's why I'm taking the cups out from there. Covers, these covers. Yes. These cups are used for protecting this, components of the fan from the dust and other things, right? And protecting all the circuit, right? So now we can take it out. This is one cup. This is other. Now you can see there are two wires, AC main inputs, right? That we connect with the AC main, right? These wires are here. You can see one is here, other is here, right? You can see here. सबको दिख रहा है, ठीक है? This is capacitor, right? Now I am opening this, right? So this is, this is for holding this entire arrangement, right? This shaft is for holding this entire arrangement, right? Yes, right? The entire arrangement is fitted in this case, and this is holded with this shaft, right? Now we are taking. Now I have removed this shaft from this arrangement side. Now you can see here, now these are two AC mains that I show you, that I use here. This is capacitor, right? This is capacitor, right? And now I'm taking out capacitor. We have taken capacitor out. Now you can see here that there are three wires, 1, 2, 3. Is it visible to everyone? Yes, you can come forward. 3 wires are coming from the inside of this fan. It means there are 3 wires in the winding. I will explain you why we are taking 3 wires. है ना? दिख रही है? 1, 2, 3. One is I think red, yellow और blue. 3 है, right? 3 के आगे 2 है. मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि there are 2 windings inside the fan. One is primary and other is auxiliary या secondary भी बोल सकते हैं, या तो हम बोलते हैं starting winding और एक running winding. उनके जो 2 end हैं, मतलब एक end है दोनों का, they have been joined together. In total we will have 4 ends for the 2 coils. So we have joined the 2 ends. That's why we have now 3 ends there, right? So जो end हमने join कर दिए, that is going to act as a common for both the coils, and the other 2 ends that we have, they will be now phase. One will be the direct phase coming from the outside, and other will be the phase coming through the capacitor. Why the use of capacitor there? You can see this is a capacitor. Now Mohit, is it AC or DC capacitor?
It is an AC capacitor. AC. Okay. So what is its value? You can see here. I think its value is marked as कितनी है? बताना जरा, पढ़ना. Yes. So ये 2.5 माइक्रोफैराड है. Yes, it is 2 point, come here forward. It is 2.50 capital MFD plus minus 5%. Now it is MFD doesn't means megafarad. It is a microfarad. Capital M. You wonder, you can ask a question that the symbol for micro is different. So why it is they are using capital M? Why they are using capital M? They are using capital M because the electrician that is working on the shops, they don't understand the symbol of micro. Right? Yes. They understand the M and the small m. Yes. Small m will be milli and capital M will be microfarad. Right? And it is a AC capacitor. Right? Marked for 40 volt AC 50 hertz. Right? So now I am taking this out. First of all, I am taking this AC. You can see here, you come here. You can see this circuit diagram, right? Here, you can see these are the three components. 1, 2, and 3. One is going directly from the AC, as I told you. Yes, sir. One is going directly from the AC. You can come forward and see. One is going directly from the AC. सीधा जा रहा है ना एक के ऊपर, जो एक बाहर से आ रही है, तीन आ रही है ना? Yes, sir. One, this is connected here. एक जो सीधी कनेक्ट है यहाँ पे, ये दूसरी जो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है, और तीसरी भी कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है यहाँ पे, है ना? तीन है ना, 1 2 3. एक के साथ जो सीधा हमारा क्या है, जो बाहर से एसी मेन आई, दूसरे के साथ कहाँ है? ऊपर. ठीक है, और तीसरे के साथ, क्योंकि दो ही हैं तो तीसरे के साथ कहां से होगा? तो तीसरा क्या है? कैपेसिटर. नाउ आई एम ओपनिंग दिस एसी मेन्स, रिमूविंग द एसी मेन्स फ्रॉम हियर. वी अंडरस्टूड? Now this is taken out, this is taken out, this is taken out, this is out. Now you can see from here, capacitor, right? And this is a direct. Told you, I told you in the beginning that in total I will have 4 ends. For the 2 coils, if I have these 2 coils, right? Yes, sir. Then they have 4 ends. 1 2 3 4. What I did, I connected these 2 ends common, right? And then that is going to act as a common, right? This is one end, this is the other end. This is, you can say, primary end, this is the auxiliary end. This is the starting coil end, this is a running coil end. Now what I will do, I am connecting a capacitor across these 2 ends. Clear? You can see here, these 2 ends, one and other. Capacitor is connected in parallel with these 2. Now when I will connect AC, you have seen that I have connected AC directly at the one end. ऐसा ही था ना? Yes, sir. एक AC वायर यहाँ थी और एक यहाँ थी. इसको नहीं किया था हमने. तो यहाँ जब हम कनेक्ट करेंगे, इट मींस AC क्या होगी? डायरेक्टली एक वायर में तो डायरेक्टली चली जाएगी सीधी, विदाउट एनी अटेन्युएशन, विदाउट एनी फेस डिफरेंस. बट दूसरे में इट विल गो थ्रू दी कैपेसिटर. You understood the rule. Now what capacitor will do? It will induce a phase difference. We know in capacitor current leads by an angle of pi by 2. तो जो दूसरी कॉइल है उसमें जो करंट है वो पहले पहुंच जाएगा बाई फेस एंगल ऑफ pi by 2. राइट? और ये ऐसा हम करते हैं, जो प्राइमरी हमारी कॉइल होती है, जो स्टार्टिंग कॉइल जिसको हम बोलते हैं ना, आई विल ओपन इट एंड आई विल शो यू. स्टार्टिंग जो कॉइल है, क्लियर, उसमें करंट हम पहले भेजते हैं और जो बाहर की रनिंग है उसमें हम बाद में. इस तरह से अगर इफ आई चेंज दिस कनेक्शंस, right, even then this fan will work, but it can have changed its rotation direction, right? It can be there depending upon the कौन सी कॉइल को हम रनिंग बना रहे हैं और कौन सी को एक्सेलरेटिंग स्टार्टिंग बना रहे हैं, वो हमारे हाथ में है, क्योंकि दोनों कॉइल सेम सी हैं. I will open it, then I will show you. So is it clear? Yes. What is the role of capacitor? Yes, sir. ठीक है. अगर हम कैपेसिटर यूज ना करें, आई विल ओपन इट, देन आई विल शो यू, तो क्या ये फैन काम करेगा? यस, काम कर सकता है ये. बट होगा क्या
कि स्टार्टिंग में when we will connect the AC main, it will not start by its own. I have to apply a little bit torque. एक बार मैं थोड़ा सा टॉर्क दे दूंगा इसको, देन इट विल कीप मूविंग. स्टार्टिंग टॉर्क इसमें नहीं होगा. आई विल शो यू क्यों नहीं होगा. वो स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए ही हम ये कैपेसिटर यूज कर रहे हैं. आई एम नाउ रिमूविंग दिस कैपेसिटर. राइट, ये याद रखना है आपने कि जो येलोइश है इट इज कॉमन. राइट, बिकॉज आफ्टर दैट वी हैव टू रीअसेंबल इट आल्सो. ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर. राइट, नाउ यू कैन सी द कैपेसिटर. हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट स्टोर चार्ज. It's not on. You can see from here. It's okay. I think this capacitor is not working. Yes, sir. Otherwise, we should get a spark there, right? Okay, no problem, right? So, switch open. Okay. Sorry, maybe I was wrong. So I can. No. कोई बात नहीं. You can check a capacitor, right? If in your fan at home you find that your fan is not working, then you can even check कि क्या कैपेसिटर में कोई दिक्कत तो नहीं है. So for that you have to open it first of all, then you have to take the capacitor out. थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और ये याद रखना पड़ेगा कि कैपेसिटर कौन सी वायर्स के साथ कनेक्टेड था. देन यू कैन चेक इट बाय प्लगिंग इट इनटू द मेन AC मेन. देन यू कैन टेक द स्पार्क, बट keep yourself away from these open wires, otherwise you can get a shock when the capacitor is charged. Discharge it before touching it. Right, now this is taking side. Now we are going to open this main. Right, now you can see here all that 2 and 3. These two are for connecting blades. Clear? Two nets for one blade, two for other two. These three are for joining this. Mohit, open it. You have to open these three. Small. पहले कभी ओपन किया है किसी ने? हैं? नहीं? So you are going to see it first time. You're not able to open it? Be careful. Don't damage your hands. एक मिनट, give me. Mohit, you were not able to open it, shows that you have not tried it. ठीक है? ट्राई किया होगा उसको पता होगा. ठीक है? Now these three nuts are open, right? Now you can see. Yes. Right? Yes, sir. Now this is the winding. This coil inside this entire arrangement, this is called prime ring winding या starting winding. Clear? जो electrician लोग हैं, they don't know primary, secondary or auxiliary. They use starting and running winding. Right? So this is starting winding inside, and outside it is a running winding. Clear? Now this is a rotor, but I think it is jammed here, so we have to open it.
मोहित ऐसा करना, आप जाओ नीचे ना, जगदीप को बोलना इसको ओपन रोटर को निकाल के दो, है ना, जल्दी से. So this when you see here, right, this part of the fan, I am holding it, it is stationary, it is not moving. What is moving? Upper part and lower part. Clear? And why it is moving? There is a rotor inside that part. रोटर देखा ना, मैंने बोला कि निकाल के लाओ, वो निकल जाता है, पर वो आई थिंक इट हैज बीन जैम्ड ड्यू टू सम डस्ट और अदर पार्टिकल्स, राइट. तो रोटर निकल गया. अब ये तो अंदर वाला पार्ट देखो, इट इज कनेक्टेड विद द शाफ्ट, इट इज फिक्स्ड. वो तो ऊपर आपने सीलिंग में फिट किया हुआ है, वो थोड़ी घूम रहा है, वो तो फिक्स है, ऐसे ऐसे घूम क्या रहा है ये, राइट. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टेटर एंड दिस इज कॉल्ड रोटर पार्ट, रोटेटिंग पार्ट. ब्लेड्स आर अटैच्ड विद दिस, और रोटर उसके अंदर है, वो मैं दिखाऊंगा आपको. अब मैं आ रहा हूं प्राइमरी और सेकेंडरी पे, या जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल एंड रनिंग कॉइल है इन टोटल, राइट. वी हैव थ्री वायर्स. मैंने बता दिया पहले ही कि क्योंकि दो कॉइल्स हैं, यू कम फॉरवर्ड, दो कॉइल्स हैं, यू कैन सी हियर, दिस इज स्टार्टिंग एंड दिस इज रनिंग. दोनों के 4 एंड हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, 4 एंड हैं, तो 4 में से 2 को क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया. क्लियर, इतनी बात समझ आ गई. अब आप भूल जाइए कि स्टार्टिंग हमारी जो वाइंडिंग है वो है. आप रनिंग वाइंडिंग पे देखिए. रनिंग वाइंडिंग में क्या है, आप देखेंगे एक जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इट इज बाउंडेड ऑन दीज स्ट्रिप्स. यू कैन सी हियर क्लोजली. व्हाट इज दिस? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस अरेंजमेंट? व्हाट इज दिस? दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर. और ये सॉफ्ट आयरन कोर भी जो है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेस जॉइनिंग देम टुगेदर. क्लियर? यस सर. और दूसरी बात, इसके बीच में आप देखते हैं ये प्लास्टिक की स्ट्रिप्स लगी हैं. व्हाई दे आर यूज्ड? फॉर मेकिंग द इंसुलेशन. क्लियर? गुड. नाउ यू कैन सी हियर, this is the rotor. It was connected with this. Let me explain it first, right? It was fitted in this. Clear? And this entire arrangement was there. Clear? So why it was rotating? This was rotating along with the upper part because they are attached through screws. So what was rotating actually? Actually this rotor was trying to rotate, and this rotor is fixed here, right? Now take it side. रख दो उसको. Now ये जो rotor है, इसका सारा खेल है. दो चीजें हैं, वाइंडिंग और रोटर. रोटर जो है, अगेन इट इज मेड अप ऑफ सम यू कैन से सॉफ्ट आयरन कोर और सम स्पेशल मटेरियल. क्लियर? अब इसको साइड में कर देते हैं. आई वाज सेइंग कि ये जो हमारा कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इसकी प्रॉपर इंसुलेशन की हुई है, लैमिनेटेड है. ये लैमिनेट क्यों किया गया? टू रिड्यूस एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस. और इसके ऊपर ना एक वार्निश आती है, जिसको वार्निश बोलते हैं, इंसुलेटिंग वार्निश. सारे के ऊपर वो लगी होती है ताकि कहीं से भी करंट लीक ना हो. क्लियर? सारी की सारी जो कॉइल्स हैं, इनके ऊपर वार्निश देखो दिख रही है आपको, लगी होती है. और ये प्रॉपर है, ये जो प्लास्टिक कोर्स हैं इनके साथ सेपरेट है. तो ये देखो एक वन कॉइल हो गई, है ना, ये अगली हो गई, इस तरह से अलग अलग है. देखो 1 2 कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है बाहर वाली कॉइल में. अब मैंने ये बोला कि अगर मान लो मेरे पास 15 छोड़ दो, एक कॉइल होती सिंपल. ये मान लो ये कोई सॉफ्ट आयरन कोर है फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर क्या किया हमने, एक कॉइल को बाइंड कर दिया ऐसे, इंसुलेटेड कॉपर वायर कॉइल बना दी. क्लियर? अब क्या किया, इस कॉइल से हमने करंट पास किया. कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं. अब अल्टरनेटिंग करंट जब हम देंगे तो इस कॉइल सॉफ्ट आयरन कोर है, कॉइल के अराउंड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी. पर जो मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी है, इट विल कंटिन्यूअसली चेंजिंग, क्योंकि एसी में पोलैरिटी चेंज हो रही है. एक टाइम वो नॉर्थ, फिर साउथ, नॉर्थ साउथ, इस तरह से बनते रहेंगे. और क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी? 100 टाइम्स अ सेकंड, क्योंकि हमारी एसी की फ्रीक्वेंसी क्या इंडिया में 50 हर्ट्ज. तो 100 टाइम्स चेंज होंगे. ये तो एक की बात थी. क्लियर? अब मान लो एक की जगह हमने 2 कर दिए, एक कॉइल मैंने और लगा दिया ऐसे. क्लियर? उसके ऊपर भी सेम है, वो भी कॉइल है. ठीक है, 2 हो गई. अब क्या होगा? नॉर्थ साउथ इस तरह से, बट दे आर रैपिडली चेंजिंग. अब 2 की जगह यहां कितने हैं? 15 बने हुए क्रॉस में, 15 कॉइल्स हैं. तो 15 कॉइल्स जो बाहर वाली है उनमें क्या हो रहा है? रैपिडली. जैसे इन कॉइल्स में यू कैन सी हियर, यहां पे नॉर्थ तो यहां पे साउथ.
क्लियर। अब ये कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, क्लियर, पूरी कॉइल्स में। तो एक मतलब चेंज तो हो रहे हैं वो, बट जैसे ही वो नॉर्थ बन रहा है तो इधर वाला साउथ बन रहा है। तो एक एक्सीलरेटिंग टॉर्क और एक डी एक्सीलरेटिंग टॉर्क दोनों साथ में बन रहे हैं। इसलिए क्या होगा, नेट टॉर्क ऑन दिस, जो बाहर हम कंडक्टर रखेंगे मैं भी बताऊंगा, उसके ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। अब ये इसकी बात आ गई, ये रोटर, इसको कहां रखते हैं हम, ये देखो बिल्कुल क्लोज में, ये घूम सकता है, इट कैन मूव। अब इसका क्या क्या पर्पज है, इसका पर्पज है भाई, जब इसको हम रखेंगे अंदर, तो जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो क्या होगा, एडी करंट्स विल बी सेट अप इन दिस, क्लियर। और जब एडी करंट सेटअप हो गए, now this current carrying conductor is placed in a time bearing magnetic field, it will experience a torque होगा। पर जब हम एक ही कॉइल यूज कर रहे हैं तो टॉर्क का क्या हो रहा है, टॉर्क कंटिन्यूसली कभी एक कभी दो फ्लिप हो रहा है। सो वी विल नॉट गेट अ टॉर्क इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड द फैन विल नॉट मूव। क्लियर हो गई बात सबको। अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंदर एक और कॉइल डाल दी हमने, इसको मैं स्टार्टिंग कॉइल बोल रहा था, और अंदर वाली कॉइल को क्या किया, कैपेसिटर से हमने उसमें जो करंट है वो लीड करवा दिया बाय एन एंगल ऑफ π/2। इसका मतलब जब अंदर वाली कॉइल में करंट पहुंचेगा, और हमें यह भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जब अंदर वाली कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगा तो उसके नॉर्थ और साउथ यहां भी तो बनेंगे, उसके नॉर्थ और साउथ बाहर वाली से पहले ही बन जाएंगे। समझ गए बात। जब मतलब यहां नॉर्थ था और यहां दूसरी साइड मान लो अपोजिट साउथ था, राइट। अब क्योंकि 90 डिग्री लीड कर रही है, अभी ऊपर वाली में करंट नहीं आया है। जब ऊपर वाले में करंट पीक पे होगा तो क्या होगा, यहां पे अपोजिट हो जाएगा, मतलब यहां साउथ हो जाएगा और वहां नॉर्थ हो जाएगा, तो ऊपर वाली में फिर नॉर्थ, इस तरह से। तो इससे क्या होगा, एक रोटेशनल इफेक्ट, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्लियर हो गई बात है। क्योंकि जब ऊपर वाली पे नॉर्थ होगा तो आगे यहां पे नॉर्थ हो चुका होगा, नॉर्थ आगे वाली पे चला गया होगा, समझ रहे बात है, आगे वाली कॉइल पे। और तब यहां नॉर्थ होगा, फिर जब इसमें से नॉर्थ खत्म होगा तो यहां आगे वाली के ऊपर वाली के ऊपर आ गया होगा नॉर्थ। इज इट क्लियर। क्योंकि रोटेट कर रहा है ना नॉर्थ, अगर मैं नॉर्थ को बोल दूं, अलग अलग कॉइल्स हैं, सब में रोटेट कर रहा है, पर अंदर वाली में लीड कर रहा है कितने से, बाय एन एंगल π/, मतलब अंदर वाली में आगे चल रहा है और उस वाली में पीछे। तो इससे क्या होगा, एक नेट रोटेशनल इफेक्ट अराइज होगा, और उसकी वजह से क्या, दिस ये जो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। इसका क्या पर्पज है, इट इज बेसिकली सॉफ्ट आयरन कोर या स्पेशल टाइप मटेरियल, जो कि यहां पे रखते हैं हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में रखते हैं, एडी करंट्स आर सेट अप इन इट, एंड इसमें करंट होता है, कम होता है, एडी करंट सेटअप होता है। और जब उस करंट कैरिंग कंडक्टर को दूसरी तरह से देखें हम, तो करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो अब ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो क्या करेगा ये, क्योंकि सारी अरेंजमेंट इसके साथ बाहर वाले के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सारा बाहर वाला जो सिस्टम है इट स्टार्ट मूविंग। इज इट क्लियर। अब इसके साथ वो नीचे वाला जो ये भी लगा होता है सारा, तो ये सारा सिस्टम इट स्टार्ट मूविंग। सो दिस इज द वे ऑफ वर्किंग ऑफ अ सीलिंग फैन। सीलिंग फैन की ये जो मोटर है इसको बोलते हैं हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। सिंगल फेस मतलब वो जो लाइट आ रही है बाहर से वो सिंगल फेस है, इट इज नॉट अ 2 फेस और 3 फेस। हालांकि 2 फेस और 3 फेस हमारी मोटर्स भी होती हैं, बट इट इज अ सिंगल फेस एसी मोटर, राइट। और सिंगल फेस एसी मोटर में हमें स्टार्टिंग करने के लिए और भी टेक्निक्स हैं, बट जो कैपेसिटर वाली टेक्निक है यही बेस्ट है। क्लियर। एक कॉइल को बना दो अंदर स्टार्टिंग कॉइल और एक को बना दो रनिंग कॉइल। क्लियर। जो स्टार्टिंग कॉइल है वो एक रनिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी, एंड देन जो आउटर कॉइल है इसका काम तो सिर्फ यही है कि जब वो रोटेशनल आगे स्पीड आ गई, क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है भाई, आपको दिख रहा है ना, ये जो बाहर वाली कॉइल है इसकी जो फील्ड बन रही है वो उसके ज्यादा क्लोज है, इसलिए बोल रहे हैं इसको रनिंग। अंदर वाली तो दूर है, तो इसकी फील्ड का इफेक्ट इसके ऊपर रोटर के ऊपर ज्यादा होगा, तो इसलिए जब वो थोड़ा सा टॉर्क मिलेगा, स्टार्ट हो जाएगा फैन, देन इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इट। क्लियर। और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो ये प्लीज टेल मी।
ये देखो, ये स्प्रिंग लगा हुआ है फॉर होल्डिंग इट, और ये यहां पे नीचे एक वॉल बीयरिंग प्लेस्ड है। क्लियर? क्यों प्लेस्ड है? क्योंकि जब सारी अरेंजमेंट को इसके ऊपर रख देंगे हम, तो ये तो नहीं घूमना चाहिए। जो शाफ्ट है ऊपर से आ रही है, ये तो फिक्स है, शाफ्ट थोड़ी घूमेगी, तो शाफ्ट जाएगी वॉल बीयरिंग में। क्लियर? वॉल बीयरिंग है, ये देखो, यू कैन सी, मतलब बाहर वाला घूमेगा, शाफ्ट अंदर से फिक्स रहेगी। क्लियर? शाफ्ट फिक्स हो जाएगी ना, और बाहर से ये इट कैन रोटेट। क्लियर? एनी क्वेश्चन इन योर माइंड? कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो बताएं। ऊपर भी बेयरिंग लगा होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये घूम रहा है ना, तो यहां भी वॉल बेयरिंग होगा शाफ्ट के और इसके बीच में जो बॉडी है। क्लियर? घूमेगा सिर्फ ये, देखो अंदर वाला नहीं घूमता है, अंदर वाला इट इज ए स्टेशनरी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इट। मोहित, कार्तिक, यू कैन स्टॉप।